This lecture is about the dermatophytosis. The dermatophytosis is a fungal disease which is caused by the fungi known as dermatophytes. So as the dermatophytes belongs to the class of cutaneous mycosis, that these dermatophytes causes the mycosis that are only present on the cutaneous surfaces. क्योंकि जो cutaneous surfaces होते हैं, जो skin surfaces होते हैं, सिर्फ वहाँ पे आपके पास fungal disease काज करते हैं. So in the category of cutaneous mycosis, आपके पास तीन fungi आते हैं. They are dermatophytosis, Taenia versicolor and Taenia nigra. So the dermatophytosis is one of the cutaneous mycosis, that it causes the superficial mycosis. कि आपके पास जो है वो skin से related mostly जो cutaneous surfaces पे जो आपके पास होते हैं वहाँ पे आपके पास क्या कर सकते हैं, disease काज करते हैं. So dermatophytosis, which is caused by the fungi known as dermatophytes, and that infect only the superficial keratinized structures. ठीक है, आपके पास जो superficial keratinized structures होते हैं, such like skin, hair and nails. So they affect and they cause the infection to the surfaces like skin, hair and nails. ठीक है, तो उसके superficial surfaces पे जो cutaneous surfaces होते हैं वहाँ पे आपके पास क्या करते हैं, infection cause करते हैं. So that will be known as dermatophytosis, which is caused by the fungi known as dermatophytes. And the most specifically जो आपके पास जो layers involve होती हैं, ठीक है, जो आपके पास organs involve होते हैं, that will be the skin, hair and nails. Mostly जो surfaces को affect करते हैं तो आपके पास skin, hair और nails को affect करते हैं. This dermatophytosis mostly affects the males, ठीक है, males को ज़्यादा affect करता है as compared to the females. And the most common example जो ज़्यादा 70% population में जो infection present होती है वो आपके पास athlete's foot की होती है. ठीक है, so athlete's foot is one of the example of the dermatophytes infection. उसके अलावा जो dermatophytes आपके पास होते हैं, ठीक है, जो dermatophytosis infection होता है, this fungal disease occurs mostly between the age of 20 and 50 years. ठीक है, 20 to 50 years जो एज होता है उसमें जो है मोस्टली इन्फेक्शन प्रेजेंट होते हैं. ये जो dermatophytes हैं, ठीक है, ये जो फंजाई है ये आपके पास मोस्टली जो है समर मंथ्स में बहुत ज़्यादा कॉमन है. तो इसके जो इन्फेक्शन होते हैं वो आपके पास समर या वार्म एरियाज में, वार्म क्लाइमेट में जो है वो ज़्यादा प्रेवलेंट होते हैं. So what is the habitat of these dermatophytes? The dermatophytes आपके पास जो है, जैसे आपको बताया कि they are mostly prevalent in the warm climate, ठीक है, जो warm environment होता है, ठीक है, जो summer season होता है उसमें आपके पास ज़्यादा common होता है. So that's like for the human body में आपके पास जो warm और जो humid areas होते हैं body के, ठीक है, वहाँ पे जो है mostly present होते हैं inside the human body. ठीक है, जो warm और humid areas होते हैं, जैसे कि आपके पास इसकी एग्जांपल आ जाती है, एटलीस्ट फुट की आ जाती है. ठीक है, जो फुट में आपके पास मॉइस्ट एरिया होता है, ठीक है, जो मोस्टली क्लोज शूज वगैरह पहनने की वजह से वहाँ पे ह्यूमिडिटी जो है वो डेवलप होती है, मॉइस्चर जो है डेवलप होता है. एथलीट्स फुट होता है. एंड जॉब फुट आपके पास क्या है, एग्जाम्पल है dermatophytosis के. तो व्हाट विल बी द मोड ऑफ ट्रांसमिशन? ठीक है, आपके पास जो dermatophytosis है, the transmission usually occurs through anthrophilic and zoophilic. ठीक है, anthrophilic भी हो सकता है and zoophilic भी हो सकता है. बेसिकली आपके पास जो 3 modes of transmission होते हैं fungi के, वो आपके पास anthrophilic होते हैं. Like anthrophilic means that the transmission of fungi from या infection from the human to human. ठीक है, जब human से human transmission होता है then it is known as anthrophilic. ठीक है, when they are transmitted from animals to humans then they are known as zoophilic. ठीक है, एंड जो सोइल से आपके पास कंटेमिनेटेड सोइल की ट्रांसमिशन होती थी जिन्होंने जियोफिलिक. जो हमने सिस्टमैटिक माइकोसिस पढ़ी थी, ठीक है, सिस्टमैटिक माइकोसिस में आपके पास जो मोस्टली ट्रांसमिशन होती है वो आपके पास क्या होती है, थ्रू सोइल होती है. सो दे आर दी जियोफिलिक ट्रांसमिशन. ठीक है, जैसे कि आपके पास हिस्टोप्लाज्मा था, टॉक्सिडियोइडिस था, तो उसकी आपके पास जो ट्रांसमिशन होती है क्या होती है, जियोफिलिक होती है, थ्रू सोइल होती है. बट इन केस ऑफ दिस dermatophytosis, इन dermatophytes क्या होता है कि एंथ्रोफिलिक ट्रांसमिशन होती है एंड जूफिलिक होती है, दैट ह्यूमन टू ह्यूमन एंड एनिमल्स. इसलिए आपके पास जो dermatophytes हैं, क्योंकि जो dermatophytosis में ज़्यादातर इन्फेक्शन जो है आपके पास एंथ्रोफिलिक होते हैं और जूफिलिक होते हैं. कि आपके पास मतलब ट्रांसमिशन जो है वो ह्यूमन टू ह्यूमन भी होती है या आपके पास जो है एनिमल्स टू ह्यूमन भी होती है, या फिर आपके पास जो थ्रू कंटेमिनेटेड ऑब्जेक्ट्स होते हैं. ठीक है, इसलिए आप जियोफिलिक कह रहे हैं, आपके पास जो है इन्वायरमेंट में अगर कोई कंटेमिनेटेड ऑब्जेक्ट्स प्रेजेंट है तो उसके थ्रू भी जो है वो ट्रांसमिशन होती है. तो ट्रांसमिशन आपके पास क्या होती है कि डायरेक्ट जो इन्फेक्टेड पर्सन है, ठीक है, अगर इन्फेक्शन जो है उसके वहाँ पे कंटैक्ट होता है पर्सन का तो उसके थ्रू भी ट्रांसमिशन होती है. उसके अलावा जो एनिमल्स हैं
ठीक है, जैसे कि बताया कि आपके पास होते हैं जूफिलिक ट्रांसमिशन भी होती है। तो इसलिए टू प्रिवेंट द इन्फेक्शन, री इन्फेक्शन क्या किया जाता है कि ह्यूमन के साथ साथ एनिमल्स को भी ट्रीट किया जाता है, ताकि वो जो है आपको दोबारा से जो है एनिमल से इन्फेक्शन ना हो सके। So that was transmission. Now what would be the pathogenesis? ठीक है, आपके पास पैथोजेनेसिस कैसे होगी कि आपके पास हाउ द डिजीज विल अपेयर, how the human will get infected by this fungi dermatophytes, as the dermatophytes जैसे कि आपको बताया कि वो क्या करता है, क्यूटेनिस माइकोसिस पास करता है। ठीक है, तो उसमें आपके पास जो मोस्ट स्पेसिफिकली और आपके पास जो इन्वॉल्व होते हैं, स्किन इन्वॉल्व होता है, हेयर होता है और नेल इन्वॉल्व होता है। सही, तो मोस्टली आपके पास स्किन, हेयर और नेल को इन्फेक्ट करते हैं। तो हमने कहा कि आपके पास जो ट्रांसमिशन होते हैं ह्यूमन में, वो आपके पास कैसे होता है, हाउ दी dermatophyte दिस फंजाई इज ट्रांसमिटेड टू द ह्यूमन। ठीक है, तो वो उसके आपके पास डिफरेंट मोड ऑफ ट्रांसमिशन थे कि आपके पास जो है वो एंथ्रोफिलिक भी होता है, उसके अलावा जूफिलिक भी होता है और जियोफिलिक भी होता है। ठीक है, तो नाउ आपके पास जो है वो तो सोर्सेज है कि उससे आपके पास जो है वो फंजाई की क्या होगी, ट्रांसमिशन होगी। नाउ हाउ द ह्यूमन बॉडी गेट्स दिस फंजाई, कि अगर ये जो कंटामिनेटेड ह्यूमन है या कंटामिनेटेड एनिमल है या कंटामिनेटेड सर्फेसिस है, उससे अगर ह्यूमन का डायरेक्ट कंटैक्ट होता है तो उसके थ्रू भी क्या होती है, ट्रांसमिशन होती है। उसके अलावा इफ देयर इज सम ट्रॉमा, ठीक है, अगर कोई इंजरी हो जाती है, कोई ट्रॉमा हो जाता है सरफेस पे, स्किन सरफेस पे, तो उसके वहां से भी आपके पास क्या होता है कि पैथोजन की जो है, पैथोजन मतलब इस केस में आपके पास क्या है, डर्मेटोफाइट फंजाई है। ठीक है, तो उसकी एंट्री हो सकती है। उसके अलावा क्राउडेड लिविंग कंडीशंस में, जैसे कि जहाँ पे बहुत ज्यादा क्राउडेड लिविंग कंडीशंस हो, एनिमल्स क्राउडेड हो या ह्यूमन क्राउडेड हो, तो वहां से भी जो है उसका स्प्रेड हो सकता है। तो वहां से भी जो है एक्सपोयर होता है और जो है वो फंजाई पैथोजन जो है वो ह्यूमन बॉडी को जो है वो इंटर हो सकता है और इफेक्ट कर सकता है। ठीक है, सो सुपरफिशियल जस्ट स्किन, हेयर और नेल्स को जो है वो इफेक्ट करेगा। मॉइस्चर, जैसे आपको बताया कि जो ह्यूमिड और वार्म एरियाज होते हैं वहाँ पे मोस्ट प्रोविलेंट होता है। एंड सेलुलर इम्यूनोडेफिशिएंसी की, अगर आपके पास जब पैथोजन जब एक्सपायर होता है ह्यूमन बॉडी का, ठीक है, तो जब तो ह्यूमन बॉडी की जो इम्यूनिटी होती है वो क्या करती है, दे फाइट अगेंस्ट दी पैथोजन। when the person is immunodeficient, ठीक है, when the fungi evades the in the human body cellular immunity, ठीक है, जब उसको फाइट नहीं कर सकती, देन आपके पास क्या होता है कि जो है दिस फंजाई विल गेट द अपॉर्चुनिटी टू इन्फेक्ट द ह्यूमन बॉडी। तो इसके आपके पास जो है ये रूट्स होते हैं, ठीक है, ये रूट्स ऑफ एंट्री हैं, ये आपके पास सोर्सेज हैं जिसके थ्रू क्या होता है कि पैथोजन जो है वो ह्यूमन बॉडी में इंटर होता है। देन मैंने आफ्टर एंट्री आपके पास क्या होता है कि 3 वीक्स टू 4 मंथ्स जो है वो सब इंक्यूबेशन पीरियड होता है। ठीक है, सो इंक्यूबेशन पीरियड इज द टाइम दैट द एंट्री ऑफ द पैथोजन, कि आपके पास जब पैथोजन ह्यूमन बॉडी से एक्सपोज होता है या एंट्री होती है, और उसके बाद जब उस अपना पीरियड, अपना टाइम पीरियड लेता है मल्टीप्लिकेशन का, डिवीजन का, और उसके बाद जो है डिजीज की अपेयर होने तक। ठीक है, फ्रॉम द एंट्री ऑफ द पैथोजन टू द अपेयरेंस ऑफ द डिजीज या अपेयरेंस ऑफ द साइन एंड सिम्पटम, उस पीरियड को क्या कहते हैं, इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। तो इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है डर्मेटोफाइट्स का, आपके पास क्या होता है, इट्स द 3 वीक्स टू 4 मंथ्स। ठीक है, 3 वीक्स टू 4 मंथ्स का टाइम लेता है ये इंटर होने के बाद डिजीज अपेयर होने का। तो आपके पास क्या होते हैं, लार्ज होते हैं और फिर उसके बाद क्या होते हैं, स्प्रेड भी होते हैं। ठीक है, आपके पास जो है वो ग्रो करते हैं, जैसे कि स्किन सर्फेसिस या हेयर या नेल पे जब प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो वो लार्ज होते रहते हैं और आपके पास ग्रो होते रहते हैं। फिर फाइनली आपके पास क्या होता है, स्केलिंग अपेयर होती है। ठीक है, इन केस ऑफ अगर हेयर्स वगैरह इन्वॉल्व है या स्किन वगैरह इन्वॉल्व है, एंड प्रोसीड्स टू टॉक्सिक एक्जिमा। और फिर आपके पास क्या होते हैं कि स्किन रेशेस, रेड एक्जिमा जो है वो अपेयर होना शुरू हो जाती है। सो दिस इज लाइक एक्जिमा। ठीक है, कि आपके पास स्किन रेशेस और रेडियस वगैरह जो है वो अपेयर हो जाती है। ठीक है, तो आफ्टर द इंट्री मतलब इंक्यूबेशन पीरियड जो है अपना कंप्लीट करने के बाद, और फिर उसके बाद जो डिजीज अपेयर होने तक आपके पास क्या करते हैं, ये ग्रेजुअली आपके पास इनलार्ज होते हैं, स्प्रेड होते हैं, और अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं करते तो इट कैन स्प्रेड। ठीक है, आपके पास जो है वो स्प्रेड होता रहता है। सो दिस वाज द पैथोजेनेसिस, कि आपके पास उसकी पैथोजेनेसिस कैसे होती है, कि आपके पास सोर्सेज हैं, फिर आपके पास इंक्यूबेशन पीरियड है, देन आपके पास उसकी लार्जमेंट होती है, स्प्रेड होता है, देन फाइनली आपके पास क्या होता है, सिम्टम अपेयर होता है, डिजीज अपेयर होती है, लाइक सीलिंग एंड एक्जिमा। वो आपके पास क्या होता है, प्रोमिनेंट उसके सिम्टम्स अपेयर होना शुरू हो जाते हैं। तो आपके पास जो ये जो डर्मेटोफाइटोसिस है, जैसे बताया कि इसमें आपके पास स्किन, हेयर और नेल इन्वॉल्व होते हैं, तो इसकी क्या होती है, फिजियोलॉजिकल मॉडिफिकेशन होती हैं। मतलब आपके पास एक डिफरेंट रीजन पे आपके पास डिफरेंट तरह से अपेयर होगा।
ठीक है। इसके जो सिम्टम्स होंगे वो आपके पास जो अपीयरेंस उसकी होगी वो डिफरेंट होगी। जैसे स्किन में वो आपके पास सर्कुलर फॉर्म में नजर आएगा, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया। ठीक है, सर्कुलर फॉर्म में होते हैं, स्किन को इस तरह से इफेक्ट करेंगे। हेयर को कैसे इफेक्ट करेंगे? हेयर में आपके पास एलोपेशिया होगा। ठीक है, एलोपेशिया मीन्स दैट उनके जो हेयर है उसका लॉस हो जाता है। ठीक है, बेल्डनेस आ जाती है, तो वहाँ पे हेयर का कम्प्लीटली लॉस हो जाता है, तो हेयर को इस तरह से इफेक्ट करता है। कैरियन फॉर्मेशन होती है। सो व्हाट इज द कैरियन फॉर्मेशन? कैरियन फॉर्मेशन आपके पास यू कैन सी हेयर। ठीक है, तो ये आपके पास क्या है? कैरियन फॉर्मेशन है कि आपके पास वहाँ पे क्या होती है? फंगल इन्फेक्शन जो रिस्पॉन्स होता है, ठीक है, आपके पास डेवलप होता है। सो दिस इज कैरियन। कैरियन इज जस्ट द रिस्पॉन्स टू द फंगल इन्फेक्शन, टू द प्रेजेंस ऑफ द फंगल इन्फेक्शन। और इसके अलावा नेल में आपके पास क्या होते हैं? नेल बिकम डिफॉर्म्ड, आपके पास डिफॉर्म होंगे एंड ट्राइबल होंगे। ठीक है, दे विल बी जो है आपके पास क्या होंगे? दे विल बी इजीली ब्रोकन। ठीक है, और बहुत ही वीक आपके पास नेल्स जो है वो होंगे। तो दैट वाज अबाउट द पैथोजेनेसिस। नाउ सिम्टम्स आपके पास क्या होंगे? हाउ द सिम्टम्स विल अपीयर, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया कि अगर आपके पास उसकी जो है रिंग वॉर्म फॉर्मेशन होती है, तो आपके पास क्या होंगे? पफ्यूज की फॉर्मेशन भी होगी और वेजिकल्स की फॉर्मेशन भी होगी। लेयन जो होते हैं आपके पास मोस्टली क्या होते हैं कि आपके पास प्यूरेटिक होते हैं। उसके अलावा अगर हेयर्स को अफेक्ट करते हैं, जैसे यहाँ पे आपके पास तीन दिखाए गए हैं। ठीक है, कि आपके पास जो है वो रिंग वॉर्म जब आपके पास अपीयरेंस होगी, इट विल बी सराउंडिंग द नॉर्मल एरिया। नॉर्मल एरिया को सराउंड करेंगे पेप्यूज और वेजिकल्स के फॉर्म में आपको जो है वो नजर आएंगे, जैसे कि है लाइक हेयर, दिस इज द नॉर्मल स्किन। ठीक है, और ये आपके पास जो है पेप्यूज एंड वेजिकल्स के फॉर्म में जो है वो आपके पास अपीयर होंगे। देन हेयर्स में आपके पास क्या होंगे? हेयर्स विल बी द ब्रोकन हेयर्स एंड द नील्स विल बी द थिक एंड ब्रोकन नील्स। How will you confirm the diagnosis for this specific dermatophytes? कि अगर आपके पास फंगल इन्फेक्शन है, how you can differentiate कि आपके पास specifically dermatophytes का ही इन्फेक्शन है? तो dermatophytes का जो आपके पास इन्फेक्शन है वो आप उसको डिटेक्ट कर सकते हैं लाइक dermatophytic reactions के थ्रू। ठीक है, सो dermatophytic reactions आपके पास क्या होते हैं? दे आर जस्ट रिस्पॉन्स टू द फंगल एंटीजन्स। ठीक है, जब आपके पास फंगल एंटीजन्स होते हैं उसके रिस्पॉन्स में क्या होता है कि लेयन जो है वो अपेयर होती है। मोस्ट स्पेसिफिकली आपके पास जो है लेयन आपके पास क्या होती है? हैंड में, फिंगर्स में अपेयर होती है, जस्ट लाइक दिस। ठीक है, तो दीज आर दी डर्मेटोफाइटिक रिएक्शन, जिसमें क्या है कि लेयंस अपेयर हो रही है इन रिस्पॉन्स टू द फंगल इन्फेक्शन, जो ह्यूमन बॉडी का रिस्पॉन्स है। उसके अलावा डर्मेटोफाइटिक रिएक्शन के अलावा स्किन टेस्ट होता है। ठीक है, तो स्किन टेस्ट क्या होता है कि पॉजिटिव जो है इन केस ऑफ टीनिया इन्फेक्शन अगर होता है, मतलब इन केस ऑफ डर्मेटोफाइट्स इन्फेक्शन, तो स्किन टेस्ट जो है वो आपके पास क्या आता है? पॉजिटिव आता है, विच मीन्स दैट के इट इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ द फंगल एंटीजन्स प्रेजेंट इनसाइड द ह्यूमन बॉडी। ठीक है, अब जो फंगल एंटीजन है उसके रिस्पॉन्स में जो एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, तो उसके रिस्पॉन्स में वो इंडिकेट करता है कि स्किन टेस्ट क्या है? पॉजिटिव है। इन केस ऑफ व्हेन दी स्किन्स आर अफेक्टेड, क्योंकि जब स्किन पे इंफेक्शन होता है, लाइक अगर एथलीट्स फुट है या रिंग वॉर्म है, तो या नील्स जो है वहाँ पे आपके पास इंफेक्शन हुआ हुआ है, तो उसकी डायग्नोसिस के लिए क्या करते हैं? उसको देखने के लिए स्किन स्क्रैपिंग्स या नील स्क्रैपिंग्स जो है वो ली जाती हैं, क्योंकि उसकी स्लाइड प्रिपरेशन की जाती है। ठीक है, स्लाइड प्रिपरेशन कैसे करते हैं कि द स्लाइड इज ट्रीटेड विद द 10% पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो उसको 10% पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट किया जाता है एंड देन क्या किया जाता है? दे आर एग्जामाइंड माइक्रोस्कोपिकली। ठीक है, स्लाइड प्रिपरेशन होती है विद स्किन स्क्रैपिंग्स और नील स्क्रैपिंग्स along with the 10% पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो इसको क्या किया जाता है? माइक्रोस्कोपिकली एग्जामाइन किया जाता है। तो माइक्रोस्कोपिकली जो है क्या होता है कि डिसेक्टेड हाइफी आर सीन। ठीक है, सेप्टेट हाइफी जो है वो उनको ऑब्जर्व किया जाता है, उसको देखा जाता है, दैट कंफर्म्स दी infection for the diagnosis of the dermatophytes infection. The other tests are for the confirmation are the Seborrheic Zager। ठीक है, Seborrheic Zager पे क्या किया जाता है? कल्चर किया जाता है। देन आपके पास जो है रूम टेम्परेचर पे वो क्या होते हैं? यू कैन सी दी हाई फी एंड दी स्पोर्स। ठीक है, तो उसमें भी आपके पास क्या होंगे? हाई फी और स्पोर्स जो है वो अपेयर होंगे। हम ये डर्मेटोफाइट्स की क्लासिफिकेशन है, उसके डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्स हैं, उसको हम
नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि आपके पास जो है वो स्पोर्स और हाइफी किस तरह से होते हैं, उसकी डिफरेंट स्पीशीज भी होती हैं आपके पास डर्मेटोफाइट्स की. सो हाउ यू कैन डिफरेंशिएट how you can diagnose the specific dermatophyte infection and differentiate the dermatophyte species, कि आप उसकी स्पीशीज को भी कैसे एक दूसरे से डिफरेंशिएट कर सकते हैं. ठीक है, सो आपके पास होता है ऑन द बेसिस ऑफ स्पोर्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ हाइफी. तो उसको क्या किया जाता है कि आपके पास जो स्पेसिमेन है उसको कल्चर किया जाता है सेप्रोज जगह पे. ठीक है, एंड देन फिर एंड देन वी आर लुक फॉर द प्रेजेंस ऑफ, फिर वहां पे क्या किया जाता है स्पोर्स और हाइफी की प्रेजेंस जो है उसको देखा जाता है. कॉलोनीज ग्रो होती है, देन कॉलोनी को क्या किया जाता है ऑब्जर्व किया जाता है. देन टीनिया कैक्टस. ठीक है, जो है जैसे कि डर्मेटोफाइट जब आपके पास हेड में इन्फेक्शन पास करता है, ठीक है, स्किन इन्फेक्शन पास करता है, तो उसकी डायग्नोसिस के लिए क्या कहता है वुड्स लैम्प टेक्निक यूज होती है. तो वुड्स लैम्प क्या करते हैं, उसका फ्लोरेसेंस, ठीक है, फ्लोरेसेंस उसके ऊपर जो है थ्रू फ्लोरेसेंस देखा जाता है. उसमें आपके पास क्या होते हैं जो लेयंस हैं वो आपके पास अपेयर होते हैं. ठीक है, जो लेयंस हैं वो डिटेक्ट किए जाते हैं विद द प्रेजेंस ऑफ दिस टेक्निक. ठीक है, वुड्स लैम्प टेक्निक के थ्रू भी जो है उसकी प्रेजेंस को कंफर्म किया जाता है. दैट वाज अबाउट दी लेबोरेटरी डायग्नोसिस. के लेबोरेटरी में आप कैसे डायग्नोस करते हैं. तो लेबोरेटरी में हमने कहा कि आपके पास 5 हमने जो है मेथड देखे कि डर्मेटोफाइटिक रिएक्शंस देखेंगे. नंबर 1. नंबर 2 जो है वो स्किन टेस्ट के थ्रू उसकी कंफर्मेशन होती है. नंबर 3 जो है वो आपके पास 10 पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मतलब माइक्रोस्कोपी के थ्रू. नंबर 4 इज थ्रू कल्चर ऑन सेबर और जेगर. एंड नंबर 5 थ्रू वुड्स लैम्प टेक्निक. ठीक है, कि फ्लोरेसेंस जो है वो फ्लोरेसेंस जो है वो उसके लेयर्स को डिटेक्ट किया जाता है, देखा जाता है. तो ये आपके पास ये 5 टेक्निक्स जो है वो यूज होती हैं फॉर द डिटेक्शन और फॉर द डायग्नोसिस ऑफ द डर्मेटोफाइट्स इन्फेक्शन. तो व्हाट वुड बी द ट्रीटमेंट. जैसे कि आपके पास जो डर्मेटोफाइट्स है दैट इज कॉजिंग द डर्मेटोफाइटोसिस, ये क्या करता है कि आपके पास जो है वो क्यूटेनियस माइकोसिस पास करता है. मतलब आपके पास क्या है सुपरफिशियल जो स्किन हेयर एंड नेल्स जो है उनके इन्फेक्शन पास करते हैं. तो इसलिए आपके पास क्या होगा कि इस केस में जो है जस्ट क्रीम्स जो ऑइंटमेंट्स वगैरह हैं वो दिए जाते हैं. तो क्रीम्स और ऑइंटमेंट्स जो मोस्टली एंटी फंगल क्रीम्स जो दी जाती हैं इस केस में डर्मेटोफाइट्स इन्फेक्शन में आपके पास होती है टर्बिनाफाइन, सेलिनिक एसिड, माइसोनेजोल एंड टोलोनाफ्टेट. तो ये जो है आपके पास क्रीम्स होती हैं विद केमिकल फार्मूला होता है जो कि रिकमेंड किया जाता है उसको ट्रीट करने के लिए. ठीक है, ताकि उसके हाइफी या स्पोर जो है उसको जो लेयंस वगैरह है उसको रिमूव करने के लिए. उसके अलावा इन सम केसेस इफ द डिजीज इज स्प्रेड, अगर डिजीज का स्प्रेड बहुत ज़्यादा हो गया है एंड इट्स नॉट गेटिंग ट्रीटेड थ्रू द एंटी फंगल क्रीम्स, देन फिर क्या किया जाता है ओरल ट्रीटमेंट मेडिसिन वगैरह दी जाती हैं. ठीक है, ताकि फिर उस तरीके से उसको ट्रीट किया जाता है. सो ओरल जो है आपके पास ओरल ग्रीसियो फुलविन जो है वो आपके पास मेडिसिन जो है वो दी जाती है ओरली दी जाती है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ दिस फंगल इन्फेक्शन. So what would be the prevention? The prevention is simply that the most favorite place or the habitat of these dermatophytes fungal, this fungi is the warm and humid areas. ठीक है, जो warm और humid areas होते हैं वो जो है मोस्टली हैबिटेट होते हैं डर्मेटोफाइट्स के. इसलिए क्या किया जाता है कि मोस्टली रिकमेंड किया जाता है कि स्किन को जो है वो ड्राई, क्लीन और कूल रखा जाए. ठीक है, तो टू कीप द स्किन कूल, ड्राई and also keeping a good hygiene will be helpful to prevent this dermatophytes infection to the growth of this fungi. So in today's lecture, we studied about the dermatophytosis. Okay, that dermatophytosis is caused by the fungi known as dermatophytes. And then dermatophytes जो है फिर उसकी हमने जो है उसकी definition देखी. Then dermatophytes उसकी transmission देखी कि आपके पास 3 modes of transmission थे कि they were anthrophilic, zoophilic and जियोफिलिक. ठीक है, देन हमने उसकी पैथोजेनेसिस देखी कि वो कैसे आपके पास जो है वो सोर्सेज क्या होते हैं एंट्री के, फिर इंक्यूबेशन पीरियड एंड देन फिर आपके पास कैसे जो है वो सिम्टम अपेयर होता है. देन उसके सिम्टम्स हमने देखे कि व्हाट वुड बी द सिम्टम्स, हाउ इट विल अपेयर, राइट. एंड देन जो है उसकी लेबोरेटरी डायग्नोसिस हमने देखी. हमने 5 टेक्निक्स देखी कि थ्रू 5 प्रोसीजर्स 5 टेक्निक्स उसको डिटेक्ट किया जा सकता है. एंड देन ट्रीटमेंट के ट्रीटमेंट के लिए बेसिकली क्यूटेनियस माइकोसिस है तो इसलिए क्रीम्स वगैरह और ऑइंटमेंट्स वगैरह दी जाती हैं. लेकिन अगर इट इज स्प्रेड एंड नॉट गेटिंग ट्रीटेड, ट्रीट नहीं हो रहा, देन ऑयल जो है वो ट्रीटमेंट रिकमेंड की जाती है. एंड देन हमने उसकी प्रिवेंशन पढ़ी कि हाउ इट विल कैन बी प्रिवेंटेड.